Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are talking about the Delhi Sultanate, in which we have talked about the slave dynasty. In slave dynasty, we have talked about the Qutbuddin Aibak. Then we have talked about the Shamsuddin Al-Tamash, Razia Sultan, and Nasiruddin Muhammad, Ghiyasuddin Balban. Now, as you know, we have talked earlier when we have started this chapter in our lecture. First, in our introduction, we have in Delhi Sultanate we have to talk about the different dynasties, in which slave dynasty, then Khalji, then Tughlaq dynasty, then Sayyid dynasty. At the end, we have to talk about the Lodi dynasty. Now, this is our probably third lecture, in which we will discuss about the Khalji dynasty. And Khalji dynasty is in second number, right? And in this we have to talk, first of all, this period starts from 1290 onwards. जो खलजी डायनास्टी का दौर जो है ये कहाँ से रहे, ये 1290 से आगे का दौर जो है ये इन्हीं का है. तकरीबन 3 सदियाँ, 3 decades they have ruled, more than 3 decades, over 3 decades they have ruled over the India. And first of all, who these Khaljis were? ये Khaljis कौन थे? These were Turkish sultans. These were basically they were from the Turkey, and they have captured the Delhi Sultanate because the slave dynasty at that time was very weak, and they were able to conquer, or they were able to capture the Delhi Sultanate, and in this way they have established their rule over the Delhi, over the India at that time. And at that time it was 1290, and first of all it was Jalaluddin Khalji who established the Khalji dynasty, who established the rule here. But with the passage of the time, he proved to be a weak ruler, and his rule remained only for the 6 years. And in this way, the new man, that is his nephew Ali Gurshaf, who titled himself as Alauddin Khalji. And when we are talking about the Khalji dynasty, basically we have to talk and we have to read much more about the Alauddin Khalji as compared to other rulers, other emperors, other kings of the Khalji dynasty. That means if it is the 30 years of rule, the man figure or the man head, man person, man face in front of us, of which we have to talk, we have to deal, is no one else but only Alauddin Khalji. And his rule starts from 1296 to 1316. Now, going forward, when we are talking about the Alauddin Khalji, his rule is from 1296 to 1316. Dear students, as I hope you will also read it from the book of your class 7th, it is very much written in the detail here. It is just a presentation as well as a lecturing, video lecturing, in which we are going to discuss and highlight the important points and important issues, important reforms, important works which Alauddin Khalji have done in his period, that is 1296 to 1316. First of all, he was most powerful ruler of this dynasty. As I told you earlier, then when we have to talk about the Khalji dynasty, in Khalji dynasty we have to talk much and more about the Alauddin Khalji, and he basically, this man was most powerful ruler. Now, how we can give explanation, how there should be a reason. There should be a reason. First of all, he was a powerful ruler as well as he was an ambitious ruler. It was his aim to conquer the whole world. Alright? Not only this, why he was most powerful ruler? Because he conquered a vast area of Delhi Sultanate, and he extended it to the Ranthambore, Chittor and Jalore in Rajasthan. These areas, first of all, when we are talking about the Delhi Sultanate, then we
are limiting it, and it is limited to the Delhi and to some parts of North India. But this man has extended it to the other parts of India also, in which later on we will talk about the some parts of South India, some parts of western parts of India. They also came under the rule of Alauddin Khilji. But as you know, when different areas he conquered, and those areas came under his rule, and a lot of war booty from these campaigns. He got a lot of war booty. In other words, उसे बहुत सारा माल मिल गया अपनी सल्तनत के लिए, जहाँ पर उसने उन छोटे छोटे बादशाहों को जो गुजरात में थे या मालवा में थे या चित्तौड़ में थे या जालोर में थे, राजस्थान में किसी जगह थे या विंध्यास में थे, या तो इन जगह पर जैसे कि इसने बादशाहों को हराया तो वहाँ उसने बहुत सारा माल लाया. ये माल किस शक्ल में था? इट वॉज इन द शेप ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, precious stones, etc. It became now the property of Alauddin Khilji. These are the reasons why the man is most powerful ruler. But he was also a wise man, a clever person. What he did, he has not brought all these areas under his direct control. Those areas which he have conquered, those areas, those kings, those leaders which he has defeated, जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने हराया अपने वक़्त में, पर उनसे ये पैसा जिसकी में हमने बात की है, जैसे एलिफेंट्स हैं, हॉर्सेस हैं, या गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये तो लाए, पर इनको डायरेक्टली अपने कब्जे में नहीं रखा, बल्कि क्या किया, इनको छोड़कर इनको अपनी इन बादशाहों को, इन छोटे छोटे बादशाहों को, रीजनल किंगडम्स को अपनी हुकूमतें वापस देकर, अपनी टेरिटरी को वापस देकर इस बात का एहसास ज़रूर दिलाया कि आपको मेरी सुपीरियरिटी, यू हैव टू रूल एज पर माई विशेस. आपको पहले मेरी सुपीरियरिटी तस्लीम करनी है. दूसरी बात यह है, यू हैव टू रन द गवर्नमेंट, you have to run your country, you have to run your area, you have to run your territory, but according to my wishes. In other words, directly you are the ruler of your territory, but indirectly I am your king. I am your king. In other words, you cannot run your government, your territory without my wishes. जब इसने ऐसा किया, अब इसने ऐसा किया कि जब इसने इनको हराया तो इनको अपनी मिल्कियत जो है वो वापस दे दी, पर इस बात का एहसास दिलाया कि सुपीरियर मैं हूँ. दूसरी बात यह है, आपको हुकूमत करनी है, आपको जो कुछ करना है, दैट यू हैव टू रन एज पर माई विशेस. वाई ही डिड सो. अब एक बात ये भी आती है जहन में कि वाई डिड नॉट ही ब्रॉट देम अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल. What is the reason? Because he wanted to conquer the vast and large area. In other words, it was his aim to conquer the whole world. That is why he did not brought them under the direct control. And it is to be said that at the end, his area, his empire was as large as that the king of Ashoka. But those who are great men, who are great personalities, who are great kings, who are greats, they are making the great reforms in their rule, in their kingdom, in their governance. Why? अगर हम आज भी देखेंगे, जब भी हमें कोई अच्छा सियासतदान आगे से आता है तो वो अपने साथ अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लाता है. हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे. अगर हम आज से कई साल पहले की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, he was also prime minister, that is Mr. Manmohan Singh. He brought a lot of reforms in the economic field. He brought a
brought a lot of economic reforms in the economic field. Same is the case this Alauddin Khilji. इसकी पॉलिसी जो थी इसमें इसे करना क्या था, ये क्या चाहता था, वो हमने पहले भी बात की. वाज़ह तौर पर ये पूरे दुनिया को अपने कब्जे में, यहाँ हुकूमत अपने कब्जे में रखना चाहता था, उसके ऊपर हुकूमत करना चाहता था. पर ये सब बातें कहने में आसान है, करने में आसान नहीं है. तो इसके लिए इसने कुछ पॉलिसीज़ की, इसने कुछ रिफॉर्म्स की. तो इसके लिए जब ऐसा इसे करना था, तो इसके लिए इसकी जब इसे ऐसा मकसद हो कि मुझे पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है, तो इसके लिए इसको बहुत बड़ी फौज भी चाहिए. सीधी सी बात है, बिकॉज यू हैव टू फाइट एट वेरियस टाइम्स. तो जब इस ऐसा करना हो, जब एक ज़्यादा फौज चाहिए, तो ज़्यादा फौज के लिए ज़्यादा पैसा भी चाहिए. तो ज़्यादा पैसा होने के लिए, तो ये पैसा ज़्यादातर हमें आज भी हम देखेंगे तो कहाँ से आता है, मार्केट से आता है. तो फॉर दैट वेरी पर्पजेस, if he needed a lot of money, he adopted a bold market policy. He adopted a bold market policy under which he controlled the rates of all commodities. ये इसकी सबसे बड़ी बात थी. ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ जैसे अभी इन्फ्लेशन होती है, प्राइस राइजिंग होती है, तो ऐसा नहीं था. It was under control. The price of all commodities was under the control, like the clothes, fruits, vegetables, slaves, food grains, etc. He set up different markets in Delhi. इसने दिल्ली में क्या मुख्तलिफ किस्म के बाजार लगवाए. He set up different markets in Delhi for the food grains, horses, slaves, cattle, clothes, etc. in which one could buy the commodities at a fixed price. जैसे कि हम देखते हैं हमारे यहाँ कभी हालात ख़राब होते हैं तो चीज़ों की जो कीमतें वो दुगना हो जाती हैं. इतना ही नहीं है, थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आ जाती हैं तो पता नहीं किसका प्राइस कितना गिर जाएगा, कितना ऊंचा हो जाएगा. ठीक है, तो इसने ऐसा नहीं किया था. मैंने पहले भी बताया, ही वाज एन एम्बिशियस रूलर. ही वांटेड टू कनकर द होल वर्ल्ड. फॉर दैट वेरी पर्पस ही नीड्स एन आर्मी. फॉर द पर्पस ऑफ आर्मी ही नीड्स मनी. And as you know, money comes from the market. For this very purpose, he established a good policy for the market. He made some reforms in which he fixed the prices. उसने क्या किया, प्राइसेस को फिक्स किया. किस लिए किया, ताकि यहाँ पर कोई धंधाली न हो और मेरा पैसा जो है वो ठीक तरीके से आ जाए और मैं उसको इन्वेस्ट कर पाऊँ अपनी आर्मी पर. और आर्मी पर इन्वेस्ट करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कनकर कर सकूँ. ठीक है. नाउ यहाँ पर मैंने एक और बात भी लिखी है. आई हैव डिस्कस्ड अ पॉइंट. शाही मंडी वाज अनदर रिफॉर्म. शाही मंडी, this was basically a post. This was basically a post. If you are going to take a shop in the Delhi market in anywhere in his rule, you have to register it. जैसा कि हम आज भी देखते हैं, किसी जगह हमें सोपोर में, हंदवारा में, कपवारा में, बारामूला या श्रीनगर की बात करेंगे या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की हम बात करेंगे, जब हम दुकान लेते हैं तो हम खाली उसका किराया नहीं देते हैं. या हम इतना ही नहीं होता है कि हमने उसके वो पैसे दे दिए, उसे एग्रीमेंट कर दिया, जो उसका मालिक था असल में तो उसे एग्रीमेंट नहीं. जो वहाँ की म्यूनसिपल कमेटी होती है, वहाँ की एक बॉडी होती है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, तो उनके साथ भी हमारे कुछ कागजात होते हैं, तो उनके साथ भी एक एग्रीमेंट होता है. इतना ही नहीं है, वहाँ की जो यूनियन अपनी होती है तो उसके साथ भी एक एग्रीमेंट होता है. What does it mean? This makes our shop, this makes our business legal. Same is the case at that time. Now you can understand. Now at this moment, from this point, you can understand how much good, how much well in his reforms he was. उसने वो अपने रिफॉर्म्स में, और उन दिनों, आज से ये 500 साल पहले की बात है, उन दिनों, सॉरी, इट इज़ 800 years बिफोर, हाँ 700-800 साल पहले की बात है. तो हम देखते हैं कि उसका दिमाग उन दिनों भी कितना तेज़ था कि उसने जो शाही मंडी रखा था, ये किस लिए था, जो कोई, इट वाज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द मार्केट. ये ऑफिसर किसके चार्ज में था, मार्केट के चार्ज में था. जो भी कोई वहाँ पर दुकान लेता था तो वो उसके साथ अपना नाम, अपनी दुकान का नंबर दूसरी जो बातें होती हैं उसको रजिस्टर करवाता, ताकि ऐसे नहीं था कि कोई इलीगल आए, कोई लीगल से जाए, नहीं. तो दूसरी बात ये भी थी, तो ये जो अपने मार्केट के जो रेट्स थे, कम्युनिटीज़ के रेट्स थे, वो उसने कम रखे थे. इट वाज नॉट हाई प्राइस.
high price or the price rising. No, but it was at the commodities were sold at the low price. Why? Because he was aware that if the market will be market will sell at the low price, definitely I have to pay the low pay scale to my army. सीधी सी बात है, अगर मुझे बाहर से सस्ता मिलेगा, अगर हमें बाहर से सस्ता मिलेगा तो जो हमारी तनख्वाह है वो भी सस्ती ही रहेगी. ऐसी बात इनकी भी है. जब इनको मार्केट से सस्ता मिलेगा, जो इसकी आर्मी है उसको भी कम तनख्वाह देनी पड़ेगी, ज़्यादा तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी. नाउ उसने जो क्या किया था, उसने दूसरी एक बात ये भी की थी, एक और रिफॉर्म उसने ये भी किया था कि उसकी जो लैंड थी फ्रॉम विच ही वाज आल्सो कलेक्टिंग द टैक्स. जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि यहाँ अगर हम आपको क्लास 60 की बात याद हो तो हम उसमें भी पढ़ते हैं कि टैक्स इज दे वर कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर. तो इसमें भी हम देखते हैं तो वास्ट रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर. बट दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर दिस वाज आल्सो डिवाइडेड. द लैंड वाज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फर्टिलिटी. ये नहीं था कि किसी की बंजर ज़मीन थी, किसी की पहाड़ी ज़मीन है तो किसी की प्लेन में ज़मीन है. अब हर किसी की टैक्स एक जैसी होगी नहीं. जिसकी पैदावार ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तो उसका टैक्स भी वैसा ही लगेगा. ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक बात है. तो इसलिए इसने जो लैंड की डिवाइडेड जो था ये किस पर किया था, इट वाज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ फर्टिलिटी. तो दूसरी बात यह है जो दोआब रीजन है तो इस पर इसने टैक्स लगाया, ज़्यादा टैक्स लगाया. क्यों? वहाँ से ज़्यादा ये आए थे ताकि वहाँ से पैसा ज़्यादा आ जाएगा. देखो दूसरी बात मैंने जो हमने इससे पहले भी कही, जो शाही मंदी की बात है इसकी हमने बात कही. तो दूसरी बात जो हमें यहाँ पर आती है, देखो ये कितना होशियार भी था. He also kept an eye on his nobles. What does it mean he also kept an eye on his nobles? Those people who were collecting the tax from the villages. Those people who were collecting the tax from the villages, they were nobles. They were nobles who were collecting tax from the agriculture, from the farmers, from the agriculturalists, from other people like as carpenters, producers. We will call them our traders, or we will call them producers. These people were nobles. They were basically appointed by the king. But however, these nobles were not honest in their way. हो सकता था कि ये नोबल जो थे ये करप्ट हो जाते, या ये रिश्वतखोरी करते, या ये बेईमानी कर जाते. तो इसके लिए इसने इनके ऊपर भी एक नज़र रखी हुई थी ताकि मैं ये देख सकूं या मैं ये पता कर सकूं या मुझे ये पता चल जाए कि खाली ये क्या मेरा ही खाली ये टैक्स ही जमा करते हैं या ये टैक्स के अलावा भी पैसा जमा करते हैं. ये भी एक बात है. देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ. अगर हुकूमत किसी की भी हो, कोई एक किंग है, कोई एक प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, तो इसकी हुकूमत है, ये किस पार्टी से है, क्या इसका मज़हब है, एक बात है. पर जो इसके यहाँ काम करने वाले हैं ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर वो ब्यूरोक्रेट्स ईमानदार होंगे, चाहे वो फिर किस we will not call a particular department. हम किसी एक खास डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिंपली कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स, जो भी मुलाजिम होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं या छोटे छोटे मुलाजिम भी होते हैं. अगर ये ईमानदार होंगे तो हम सीधे से कहेंगे जो पार्टी आगे से हैं या जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, या जो कोई भी आगे होगा, सदर होगा, तो हम कहेंगे ये ईमानदार है. अगर ये ईमानदार होगा भी, पर जो इसके ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी ईमान होंगे, तो हम सीधे से कहेंगे कि वो जो ऊपर बैठे हैं ये भी ईमानी है. इसी तरह इसकी भी बात है. अगर ये अपने ऑफिसर्स, अपने नोबल्स पर ये नज़र नहीं रखता तो वो बेईमानी करेंगे. जब वो बेईमानी करेंगे तो सीधी सी बात है, लोग किसके खिलाफ हो जाएंगे? लोग बादशाह के खिलाफ हो जाएंगे. तो इसी तरह से जब हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो हमें रिफॉर्म्स इन आर्मी भी इसकी के बारे में भी बात करनी है. तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा
There are various points which are discussed in our book, but the important one, he paid his army in cash. As I told you, that his market, जो उसका मार्केट था उसमें हर कोई चीज़ सस्ता था, तो सस्ता होने के साथ साथ वो अपनी जो आर्मी जो उसकी थी उसको वो ज़्यादा पे भी नहीं देना पड़ता था, पर अब जो वो पे देगा करता था, दैट वाज नॉट इन कमोडिटीज, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये पहली बात है, सबसे अच्छी रिफॉर्म ये भी है। और दूसरी बात ये है, इसने अपने मुल्क में जगह जगह पर रखे थे जासूस। अगर हम आज भी देखेंगे, जितना काम आज की जो फौज करते हैं उससे ज़्यादा काम कौन करते हैं? जासूस करते हैं, इंटेलिजेंस करते हैं। क्यों करते हैं? और इंटेलिजेंस को पे भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये खुफिया होती हैं और यही असल में राज पता करके लाते हैं। आपको मेरी बात समझ में आती है? तो दूसरी बात यह है कि उन दिनों की बात जब हम करेंगे तो वहाँ उन दिनों जंग जो लड़ी जाती थी वो हॉर्सेस पर लड़ी जाती थी। उन दिनों तो गाड़ियाँ थी नहीं, टैंक्स तो थी नहीं, तो हॉर्स पर लड़ी जाती थी, घोड़ों पर। ठीक है, तो घोड़ों में भी हम देखते हैं कुछ अच्छे नस्ल के होते हैं, वो ज़्यादातर तेज़ दौड़ने वाले होते हैं और अच्छी तरह से उथल पथल भी कर सकते हैं, तो ये अच्छे नस्ल के माने जाते हैं। तो इनके ऊपर एक मार्क लगाया जाता था जो अच्छे नस्ल के होते थे, और जो दूसरे नस्ल के होते थे उन पर दूसरा मार्क जो लगाया जाता था। इससे क्या हो जाता था? सो दैट दीज विल नॉट गेट मिक्सड, they could not be replaced with inferior horses. As the horses carried a mark on them, they could not be replaced with inferior horses. These were the reformers. These were the reformers which Mr. Alauddin Khalji brought in his regime, in his rule during 1296 to 1316 when he was a king. And after him there have been other rulers also. But all these rulers proved very weak as compared to Alauddin Khalji. And Khosrow Malik was the last ruler, and he was dethroned by Ghiyasuddin Tughlaq. In our next lecture, we have to read about the Tughlaq dynasty. This is basically a case study of the Tughlaq dynasty. I will hope that you will also read it on your book in these days. Till this Wednesday, you will go through the book and you will read it. This was for today, and in our next lecture, inshallah, we will carry from the Tughlaq dynasty. Thank you for today.